Hello learners, welcome to our English class. In today's class, we are going to read another chapter from our Flamingo book. That is, it is actually a poem, My Mother at 66, written by a poetess Kamala Das. She is from Kerala and all her poems mostly contain the Indian fervor. This is also a very sensitively framed poem and dedicated to a mother. The best relationship is between a mother and her child. So this has been properly picturized, this has been properly presented in this poem. Let us read the poem. Now this poem I have divided into 3 stanzas. One stanza is from driving from the parents' home till the copse. So we'll be first understanding this stanza. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Doors, open mouth, her face ashen like that of a corpse. Now what the poetess is saying, she is saying that she had gone to visit her parents and from there she is going to Cochin airport. She is going towards Kochi. Her own home must be in Cochin, so she is going into that side. Last Friday morning, this is a time of last Friday morning, I saw my mother beside me. In a car, I saw that my mother was sitting beside me. Doors, open mouth, her face ashen like that of a corpse. Doze means dozing is a short sleep which we take while sitting only. Sometimes it happens कि कभी कभी दिन में ही हम बैठे बैठे सो जाते हैं. So that is dozing. Short nap we take while sitting. So that is dozing. She was dozing. Open mouth. Her mouth was open. Her face ashen like that of ashen means what? Ash color का. It is like the color of the ash. Ash के जैसा color. Ash क्या होता है? Ash means when something burns, जो residue बचता है कुछ जलने के बाद जो राख बचती है उसको ऐश कहते हैं. सो उसका कलर कैसा होता है? ग्रे डल कलर. तो इनका भी फेस का कलर वैसा ही है, डल लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स. जैसे एक डेड बॉडी का होता है, जैसे डेड बॉडी के फेस के ऊपर कुछ इट डजंट हैव ग्लो ऑन द फेस. ऐसा ही उनका फेस दिख रहा है. सो हर फेस इज बीन कंपेयर टू अ डेड बॉडी. ठीक है. This shows the descending age and descending power of her mother. And this leaves her very depressed. This thing leaves her very depressed. This thought leaves her very sad. She grows very emotional here. Alright? Then we'll go to the second stanza. The second stanza is saying, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. Now what is this saying? That her age has not increased only in number, but the physical description of her body, of her face is also degrading. वो जो जितने एज की है वो एज अब उनके चेहरे पे दिख रही है. कुछ लोग होते हैं जो एज के होते हैं लेकिन फिर भी उनके चेहरे पे ग्लो होता है, ऐसा इनका नहीं है. तो जिस तरह से उनकी एज है 66 ईयर्स की, वही उनकी फेस पे वही पेलनेस पता चल जाता है, वो दिख रहा है. इट कुड क्वाइट ऑब्वियसली बी सीन ऑन हर फेस. ठीक है. इट इज़ क्वाइट क्लियर, अपेरेंट है, वो दिख जाता है कि वो इतनी एज की है. ठीक है. बट सून पुट दैट थॉट अवे and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. Now what happens is, ये thought इतना painful होता है, इतना depressive होता है कि now she could not bear this. ये thought bear नहीं कर पाती, वो सहन नहीं कर पाती. That thought and feeling becomes unbearable. And in order to swing her mood or divert her attention, what she does, she looks outside the window of her car. ठीक है. ये कार से बाहर देखती है क्योंकि अंदर का जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, बहुत नेगेटिव फील हो रहा है उनको. सो शी सीज आउटसाइड. ठीक है. हियर द पोएट इम्बाइब सम पोएटिक डिवाइसेस. कुछ पोएटिक डिवाइसेस हैं जैसे इमेजरी है, सिंबलिज्म है, पर्सोनिफिकेशन है. ये पोएटिक डिवाइसेस इन लाइन्स में आते हैं. व्हाट आर दे? वी विल अंडरस्टैंड देम लाइन बाय लाइन.
looked out at young trees sprinting. young trees मतलब अभी फ्रेश है सारे पेड़ और वो क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं. ठीक है. नाउ हियर इमेजरी इज दैट. तो जैसे ये हम पढ़ते हैं तो हमको हमारे सामने वो इमेजिनेशन, वो पिक्चर हमारे सामने आ जाता है कि पेड़ दौड़ रहे हैं, गाड़ी चल रही है, पेड़ दौड़ रहे हैं. सो दैट इज वाई दिस द पोएटिक डिवाइस यूज हुई. यहाँ पे जो अलंकार यूज हुआ, पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है वो है स्प्रिंटिंग, ट्रीज स्प्रिंटिंग. ऑलराइट. अगेन सिंबलिज्म इज दैट, क्योंकि पेड़ जो है वो यंग है और दे आर द सिंबल ऑफ फ्रेशनेस, दे आर द सिंबल ऑफ मूवमेंट ऑफ लाइफ, दे आर द सिंबल ऑफ फ्रेशनेस इन लाइफ. ठीक है. इसके अलावा पर्सोनिफिकेशन भी है. पर्सोनिफिकेशन कैसे? पर्सोनिफिकेशन कब होता है? जब किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग फॉर्म में बताया जाता है. स्प्रिंट कौन करता है? भागता कौन है? इंसान भागता है या एनिमल्स भागते हैं. लेकिन यहाँ पे पेड़ों को स्प्रिंट करते हुए बताया गया है. दे आर रनिंग वेरी फास्ट. सो अगेन पर्सोनिफिकेशन, यानी यहाँ एक यंग ट्री स्प्रिंटिंग है, इसमें उन्होंने इमेजरी, सिंबलिज्म, पर्सोनिफिकेशन, ऐसे कुछ पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया है. The merry children spilling. Again here symbolism is there. Merry means happy. MERRY. Merry, happy children are spilling. Spilling मतलब coming out. कहाँ से बाहर आ रहे हैं वो? They are coming out of the homes. Again these merry children are symbol of energy. They are symbol of freshness. They are the symbol of zeal. ठीक है. तो ये जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट उनको फील होता है. अंदर जो नेगेटिविटी है that becomes nullified when she sees outside scene. तो वो आउटसाइड सीन जो है वो बहुत ज़्यादा उनको फ्रेश कर देता है. उनका थोड़ा सा उनका अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाता है. ऑल राइट. हियर समथिंग आयरॉनिकल इज ऑल्सो प्रेजेंट. आयरॉनिकल क्या होता है? अपोजिट ऑफ द रियलिटी. हमको पता है कि ट्रीज स्प्रिंट नहीं करते, तो ये आयरनी क्या है? एवरीवन नोज कि जब गाड़ी चलती है तो पेड़ तो उसकी जगह पे खड़ी होता है, गाड़ी चलती है. ठीक है. तो हियर आयरनी इज दैट. आयरनी मीन्स अपोजिट ऑफ व्हाट इज द रियलिटी. तो बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस इन लाइन्स में स्पेसिफिकली ट्री स्प्रिंटिंग में यूज हुए हैं. ठीक है. व्हाट आर दे? इमेजरी, सिंबलिज्म, बिकॉज ट्रीज आर सिंबल ऑफ फ्रेशनेस, ट्रीज आर सिंबल ऑफ यूथ, दे आर द सिंबल ऑफ ब्यूटी. ठीक है. अगेन पर्सोनिफिकेशन इज बीन यूज्ड. यहाँ पे इनको इनमें लाइफ डाल दी गई है, पर्सोनिफिकेशन हुआ है. Then again ironical it is, trees sprinting, trees never run. तो just opposite of what, जो गाड़ी दौड़ रही है उसके बदले उन्होंने पेड़ को दौड़ते हुए बताया. Merry children spilling, यहाँ पे कौन सा poetic device यूज हुआ है? Here they have used symbolism. The poetess has used symbolism. They are the symbol of energy, they are the symbol of zeal, they are the symbol of life. All right. So how these two scenes are contrast with each other. She has presented the contrast of the two scenes. दोनों में बिल्कुल विरोधाभास है, दोनों एक दूसरे के opposites है. Thus the poetess presents the contrast in the environment inside and outside the car. All right. Now the next stanza is from "But after the airport security check till the last, till the ending line." All right. Till smile, smile, smile. So you will cover up explanation of this stanza. But after the airport security check, now she has reached the airport and she has already entered the airport, and then security check से फिर वहाँ पे outsiders को entry नहीं होती है, तो वहाँ वो गए and the poetess went inside. वहाँ पे अपना she just checked in over there and then standing a few yards, दूर खड़ी रही कुछ दूर, क्योंकि वो distance था, वहाँ पे उनकी mother खड़ी थी. Away I looked again at her. फिर उन्होंने मुड़ के अपनी मदर की तरफ देखा. What she saw? She saw a van. Van pale. Van क्या होता है? Van is a sick, pale, yellow in color. This again is presenting a negative impression. फिर से उनके दिमाग में वो negative impression आ गई. ठीक है. Van pale, lifeless. Van means colorless. Pale भी yellow होता है, yellow dull color. उनके चेहरे पे देख लिया उन्होंने. As a late winter's moon, ऐसा शो हो रहा था जैसे वो late winter's moon हो. She is comparing here, again comparison is used. अपने मदर के फेस को पहले उन्होंने कॉप्स के साथ कंपेयर किया, अब वो उसको कंपेयर कर रही है late winter's moon. Now what is a late winter's moon? जब विंटर बहुत पीक पे होती है. ठीक है. जब विंटर बहुत इट इज इन इट्स फुल स्विंग, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, उस समय का मून अगर कभी हमने नोट किया हो,
तो वो बिल्कुल डल कलर का दिखता है। इट लेक्स लस्टर एंड ग्लेज, उसके अंदर वो शाइन नहीं होता जो समर मून में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो अपने मदर के फेस को उस लेट विंटर मून से कंपेयर कर रही है, बिकॉज इट इज नॉट हैविंग एनी ग्लो। जो यूथ का ग्लो होता है वो वहां पे उनके फेस पे उसको नहीं दिख रहा है। ठीक है, इट हैज लॉस्ट ऑल हर ब्यूटी एंड वाइटैलिटी, उनके चेहरे पे वो ब्यूटी नहीं रही, वो वाइटैलिटी, वो जो ग्लो होता है, वो जो शाइन होती है वो नहीं रही। और एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और जैसे ही फिर से उन्होंने उस फेस को नोट किया इस तरह से नेगेटिवली, तो उनके दिमाग में फिर से वो, उनके मन में फिर से वो पहला पुराना बचपन का दर्द, फैमिलियर एक मतलब जाना पहचाना दर्द। ठीक है, एक जो उनके बचपन से उनके मन में था फियर, दैट वाज द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर एनी टाइम, वो डर वापस उनके मन में आ गया। Thus the idea of her mother's aging has become very much painful, but she wants to overcome that again. फिर से वो उसको overcome करना चाहती है। She want to be hopeful still. She doesn't want to show that pain and fear to her mother. She doesn't want that should be seen on her face. तो वो फिर क्या करती है? But all I said, she said, what she said, see you soon अम्मा। ठीक है, उनके मन में डर है कि हो सकता है मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँ तब मदर शायद नहीं मिले, बिकॉज शी हैज बिकम सो वीक एंड शी हैज बिकम सो एजड, इन फिर भी शी वांट टू ग्रो होपफुल। ठीक है, दीज लाइन्स पुट्स इंस्टिल अ होप इन द पोएटेस। ऑल आई डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। स्माइल क्या है? स्माइल इज व्हाट? स्माइल इज द सिंबल ऑफ पॉजिटिविटी, स्माइल इज द सिंबल ऑफ होप, स्माइल इज द सिंबल ऑफ बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, वो ऑप्टिमिज्म का सिंबल है। ठीक है, इंसान ऑप्टिमिस्टिक होता है कि कोई भी अगर तकलीफ में भी उनको अगर कोई स्माइल करता है तो उसको ऐसा फील, वो ऐसा शो करता है कि शी इज बिलीविंग, ही और शी इज बिलीविंग दैट समथिंग गुड विल स्टिल हैपन फर्दर, समथिंग गुड इज स्टिल वेटिंग फॉर हर फर्दर, फॉर हर और हिम फर्दर। तो वो चीज़ वो बताते हैं। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द पोएम, हाउ इट एंड्स। ये 3 स्टांजाज हैं, इनको यहाँ पे भी फिर से उन्होंने एक पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है जो है रिपीटेशन, जिसको कहते हैं रिपीटेशन, बिकॉज द वर्ड इज गेटिंग रिपीटेड। एनी लेटर और एनी वर्ड इज गेटिंग रिपीटेड इन अ सिंगल लाइन, वो पोएटिक डिवाइस, वो इंग्लिश में अलंकार, इंग्लिश लिटरेचर में वो अलंकार होता है रिपीटेशन। तो यहाँ पे रिपीटेशन का यूज हुआ है, स्माइल स्माइल एंड स्माइल। ओके, सो व्हाट आर द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड हियर? कौन से पोएटिक डिवाइसेस हैं जो हमने किए थे? इमेजरी, ठीक है, इमेजरी यूज हुआ है। देन आफ्टर इमेजरी इट इज सिंबलिज्म, सिंबलिज्म यूज हुआ है। देन पर्सोनिफिकेशन, देन आयरनी, आयरनी इज यूज्ड, और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में यूज हुआ है रिपीटिशन, जहाँ पे वर्ड रिपीट हो रहा है। सो यू हैव टू रिमेंबर कि ये सारे सिंबल्स कहाँ यूज हुए हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी seeing the important question answers of this poem.